Polycystic ovarian syndrome is a common yet often misunderstood condition that affects various aspects of women's health, including their physical, emotional, and hormonal well being. Despite its prevalence, awareness about PCOS remains limited, leaving many women uninformed about its implications and management strategies. Raising awareness about PCOS is essential to empower women with the knowledge they need to make informed decisions about their health. By understanding this impact and recognizing the importance of early intervention and lifestyle adjustments, women can take proactive steps towards better management and overall well being. So join us as we explore the significance of polycystic ovarian syndrome, shedding light on this vital topic and offering insights that aim to inspire and educate women everywhere. Welcome, everyone. I'm Dr. Soumya Saluja from Tip Media, and today we aim to shed light on an important yet often misunderstood health condition, polycystic ovarian syndrome or PCOS. और इस आवश्यक चर्चा का मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं प्रसिद्ध स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर एकता सिंह. Dr. Ekta Singh is a highly skilled gynecologist and obstetrician, proudly hails from the esteemed KGMC, Lucknow. She embarked on her professional journey as a senior resident at Lady Harding, Delhi, and currently serves as a distinguished senior consultant Cloud9 Hospital in Noida. Dr. Ekta is the recipient of prestigious accolades, including the Sri Prabhu Daya Baveja Memorial and UP Ratna Ayushman Awards. With a wealth over 2 decades of experience, she has overseen more than 10,000 deliveries. Furthermore, Dr. Ekta Singh holds prominent roles within the NOGS, serving as both the treasurer and former joint secretary. Her extensive expertise has led to numerous national and international publications. When seeking her guidance, you can expect not only problem-solving approach but also a holistic perspective that nurtures the body, mind and soul. तो आइए अब डॉक्टर एकता सिंह के साथ समझें कि हम महिलाएं पीसीओएस नामक इस कंडीशन को हम किस तरह से रोक सकते हैं और प्रबंधित कर सकते हैं. डॉक्टर एकता सिंह मैम, टिप मीडिया वेलकम्स यू. थैंक यू मैम. मैम, पीसीओएस या फिर जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी बुलाते हैं, ये एक ऐसा कंडीशन है जो ज्यादातर औरतों को अफेक्ट करता है. And yet, I feel that it is often misunderstood or overlooked. So, to begin our discussion, I'd like to start with a very fundamental question that what is this polycystic ovarian syndrome? And just थोड़ा सा confusion दूर करने के लिए कि how does it differ from PCOD, that is polycystic ovarian disease? Okay, most of the time, Dr. Soumya, we use these both the term interchangeably, but these are similar. We can say it's similar, but not the same. So to know the difference, we have to understand what is the difference between disease and a syndrome. So disease is the disorder of any organ, just like we say heart disease hai. तो heart का problem है ना. But when we tell syndrome, then it comprises of many multiple signs and symptoms, and it involves many organs, we can say. Just like अगर हम PCOD पे जाते हैं डॉक्टर सौम्या, तो polycystic ovarian disease. Poly means multiple, cystic means fluid-filled spaces in ovary. So if a lady or girl has multiple cysts in the ovary, it's just the polycystic ovarian disease. But when we tell polycystic ovarian syndrome, it comprises of many organs, just like one is hypothalamus, is a part of our brain. I don't know, आप जानते होंगे, you are a medical person. So hypothalamus is a very important part in our brain. Hypothalamus and the pituitary is the master gland of the body. Pituitary gland also lies here.
the brain, base of the brain, and then ovary. So HPO एक्सेस जब गड़बड़ हो जाता है तो वो पीसीओएस सिंड्रोम में आता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में। साथ ही और भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे हमारी बॉडी में मेल हार्मोन एक्सेस होने लगता है, एंड्रोजन एक्सेस होने लगती है, जिससे बहुत सारे फीचर्स आते हैं जो आप आगे बात करोगे। देन हमारा एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, आपको पता है, पैंक्रियाज, जिससे इंसुलिन रिलीज होता है, जो डायबिटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर इंसुलिन का रेजिस्टेंस भी शुरू हो जाता है इस पीसीओएस में, तो मल्टीपल एंडोक्राइन ग्लैंड्स का डिस्टर्बेंस, हार्मोनल डिसबैलेंस शुरू हो जाता है इस पीसीओएस में। सो ओके, राइट मैम। और मैम इस पीसीओएस के जो आप कह रहे हैं कि एचपीओ एक्सेस की नॉर्मल से डिविएट होने पर ये कंडीशन डेवलप हो जाती है, तो इसके सबसे इम्पोर्टेंट कारण क्या हो सकते हैं? सो व्हाट आर प्राइमरी कॉजेस ऑफ दिस पीसीओएस? कॉजेस पीसीओएस के कॉम्प्लेक्स हैं, मल्टीफैक्टोरियल हैं। तो अगर हम बात करें तो कई बार कहा जाता है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, तो हाँ, हम कह सकते हैं कि फैमिली में रन करता है, या जिसकी सिस्टर को है, बड़ी एल्डर सिस्टर को है, तो हो सकता है हमें भी हो। बट आप अगर कॉजेस पे जानना चाहोगे तो सबसे पहले किसी भी डिजीज का कॉज हम जानना चाहते हैं तो हमें देखना चाहिए वो कहाँ प्रेवलेंट है और किस समय पे वो प्रेवलेंट हुआ। तो आप देखो अराउंड 20-30 इयर्स बैक अगर हम जाते हैं तो पीसीओडी पीसीओएस था ही नहीं, हम बात ही नहीं करते थे। अभी लास्ट 20-30 इयर्स से ये बढ़ता जा रहा है और नाउ इट्स वेरी कॉमन। इनिशियली वी गेट द पेशेंट in their 30s when we tell he has PCOS or PCOD, but nowadays from 20s puberty शुरू हुई and till menopause 40s में भी लोगों को PCOD PCOS हो रहा है। तो what are the causes? तो lifestyle plays a significant role in the cause of this PCOS or PCOD. So lifestyle पे अगर हम बात करें तो जस्ट हमारा इनएप्रोप्रिएट डाइट हैबिट, आप देखते हो हम कार्ब्स कंपैरेटिवली ज्यादा खा रहे हैं एंड फाइबर्स हमारे कम होते जा रहे हैं। देन फिजिकल एक्टिविटी, 20 इयर्स बैक हम सभी फिजिकली ज्यादा एक्टिव थे, हमारे पास मेट्स नहीं होती, हमारी मदर्स और घर के सारे काम करती थी। बट नाउ अ डेज वी आर IT पर्सन, वी आर टीचर, वी आर डॉक्टर, सो वी ऑल आर गोइंग थ्रू दिस डेस्क जॉब। तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई और साथ ही क्या बढ़ गया है, हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, हम स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं। स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है हमारे पीसीओडी के लिए, पीसीओएस के लिए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमने अभी बात की थी डॉक्टर सौम्या, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सेस की, ये डैमेज होता है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है सनसेट के बाद अगर हमारी आईज से लाइट अंदर जाती है, मतलब हम सो नहीं रहे हैं आफ्टर सनसेट। ये सुन के बहुत अजीब लगेगा कि सनसेट के साथ सोना, क्या ये एब्सर्ड सी बात है डॉक्टर एकता, डॉक्टर सौम्या, आप क्या बातें कर रहे हो? लेकिन थोड़ा सा आप बैक जाओ, शायद आपको याद हो, या अपने मदर और ग्रैंड पेरेंट्स से आप पूछोगे तो पहले के समय में 7-7:30 जब सनसेट हो रहा होता था तो खाना बनता था, उसके बाद वो सोने चले जाते थे। तो सनसेट के बाद हमारा अगर लाइट आंखों के थ्रू जाती है, हमारे वर्किंग गर्ल्स आजकल यूएस शिफ्ट में काम कर रहे हैं या कुछ भी इस तरह से, उनका रात 11 बजे तक 2 बजे तक ऑफिस का काम चलता है और स्क्रीन के थ्रू लाइट आंखों में जाती है और पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस काम नहीं कर पाती ठीक से। तो एक बहुत बड़ा रीजन है जिसको हम नजरअंदाज करते हैं। These are the causes, including weight gain। अगर हमारा वेट गेन होता है और स्पेशली टमी फैट, हम पूरा वेट बढ़ रहा है, बोन फैट बढ़ रहा है, बोन वेट बढ़ रहा है, आई मीन अगर मसल वेट बढ़ रहा है तो इट्स वंडरफुल, इट्स गुड। बट अगर हमारा टमी फैट बढ़ रहा है, दैट इज वेरी अनहेल्दी फॉर पीसीओएस। ओके, राइट। और मैम इन्हीं कारणों की वजह से जो अभी हमने सारे डिस्कस किए हैं, अगर कोई पीसीओएस जैसी कंडीशन को डेवलप कर लेता है तो उसको ये पता कैसे चलेगा? आई मीन व्हाट आर द मोस्ट कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ पीसीओएस एंड हाउ कैन women identify these potential early indicators of the condition? So first and foremost, we the girl or lady
get a irregularity of menstruation. अगेन हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस अगर ये अच्छे से काम करता है तो हमारे रेगुलर मेंसेस आते हैं, जो एक इंडिकेशन होता है कि हमारी ये एक्सिस अच्छे से काम कर रहा है। बट अगर हमारा मेंसेस डिले हो रहा है, ये एक्सिस काम नहीं कर रहा है, एग रिलीज नहीं हो रहा है, तो मेंसेस नहीं आएंगे। जिस दिन एक गर्ल का एग रिलीज होता है उसके 14-15 डेज पे हमें मेंसेस आ जाता है। तो मंथ में एक बार एग रिलीज होता है और मंथ में एक बार इस तरह से उसके 14 दिन बाद मेंसेस आता है। बट पीसीओएस में एग्स रिलीज नहीं होते हैं और वो ओवरी में इकट्ठे होते जाते हैं। इसीलिए हमें सिस्ट मिलती है, मल्टीपल पॉलीसिस्टिक ओवरी मिलती है। सो एग रिलीज नहीं हुआ, मेंसेस नहीं आया, मेंसेस डिलेड है। 3 महीने 4 महीने इस तरह से डिले होने के बाद फिर एक लेवल आता है जब यूट्रस उतने एंडोमेट्रियम को होल्ड नहीं कर पाता, तो वो बीच में स्पॉटिंग की तरह, इरेगुलर ब्लीडिंग की तरह भी प्रेजेंट कर सकती है लेडी। मींस डिलेड साइकिल, एमेनोरिया, ब्लीडिंग हो ही नहीं रही है, या लेट लेट में ब्लीडिंग हो रही है, डिलेड साइकिल या इरेगुलर ब्लीडिंग, बीच में स्पॉट आ रहे हैं, तो ये मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो गई। देन एंड्रोजन एक्सेस की हमने बात करी थी कि मेल हार्मोन की एक्सेस हो जाती है, जिसकी वजह से हमें फेशियल हेयर्स, आपने सुना होगा, हर्सिटिज्म कहते हैं हम, मेडिकल टर्म उसका होता है। तो हर्सिटिज्म हमें यहाँ पे हेयर्स हो सकते हैं, बियर्ड वाली जगह पे हेयर्स हो सकते हैं, पोर्स हो सकते हैं। देन बैक और चेस्ट पे भी हेयर्स कुछ लोगों के शुरू हो जाते हैं। देन मेल पैटर्न बाल्डनेस शुरू हो जाती है, बिकॉज मेल हार्मोन हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन एक्सेस हो रहा है। तो जो मेल्स के अंदर हेयर्स, फीमेल का एक तरह से साइन है, तो हेयर थिनिंग शुरू हो जाएगी। देन यहाँ से हेयर फॉल शुरू हो जाएगा। तो मेल पैटर्न। देन इंसुलिन रेजिस्टेंस, हमने बात की थी कि पीसीओएस में पैंक्रियाज इफेक्टेड होने लगता है एंड इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है। इंसुलिन कैसे काम करता है? व्हेनेवर वी ईट समथिंग, कार्ब्स, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ग्लूकोज रिलीज होता है और वो ब्लड में पहुंचता है। ब्लड में इंसुलिन एक्ट करता है जो पैंक्रियाज से रिलीज होता है ग्लूकोज के आने पर, और वो सेल्स के अंदर ग्लूकोज को ले जाता है, जिससे आगे एनर्जी मिलती है, हम काम कर पाते हैं। बट ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन काम नहीं कर पाता और वो ग्लूकोज ब्लड में ही घूमता रहता है और वो सेल्स के अंदर जाके हमें एनर्जी नहीं दे पाता, हमें फटीग होता है, हमारा वेट गेन होता है और ब्लड में शुगर ज्यादा दिखता है, हाइपरग्लाइसीमिया होता है, जिसको हम डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। अगेन जब हम एग रिलीज नहीं होगा तो फिर हम फर्टाइल कैसे होंगे, बेबी कैसे आएगा? बिकॉज वी नीड 1 एग जिससे फर्टिलाइज्ड होगा स्पर्म और हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो इनफर्टिलिटी के इश्यूज भी हो जाते हैं। तो these are the common symptoms and sign of PCOS. राइट। और मैम जैसे अभी आपने बताया कि इरेगुलर स्पॉटिंग या फिर इरेगुलर मेंसेस एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है फॉर पीसीओएस। तो अगर किसी लड़की को या किसी लेडी को ये प्रॉब्लम है और वो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर्स इसको डायग्नोज कैसे करते हैं? सो व्हाट डायग्नोस्टिक टेस्ट्स आर यूज्ड टू कंफर्म PCOS? So history and examination is very important. If a girl comes with this menstrual irregularities, so we have back in the mind, it may be a pregnancy thing. Maybe हम प्रेग्नेंट हुए हों, सेक्सुअली एक्टिव है अगर वो गर्ल और लेडी, तो प्रेगनेंसी को हम डेफिनेटली रूल आउट कर लेते हैं, उनकी हिस्ट्री लेते हैं, उनके एग्जामिनेशन पे हमें अगर फेशियल हेयर्स, ओबेसिटी, वजन ज्यादा दिखता है, और देन हम जाते हैं कुछ टेस्ट के थ्रू, जैसे हार्मोनल टेस्ट करते हैं। आपने सुना होगा LH, FSH, हम जो बात कर रहे थे, दिस हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी की LH और FSH, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, उसे हम चेक करते हैं। एक नॉर्मल पर्सन में, एक नॉर्मल फीमेल में LH और FSH का रेशियो 1:1 होता है, जो मेंसेस के यूजुअली हम डे 2 पे मॉर्निंग में फास्टिंग सैंपल से चेक करते हैं। बट वो अगर LH बढ़ने लगता है तो इट इज इंडिकेटिव ऑफ PCOS. Then we go for testosterone. We are talking about that male hormone. Testosterone is higher in those girls. तो टेस्टोस्टेरोन अगर बढ़ा हुआ है,
Same way, there are hormones like DHEA and 17-hydroxyprogesterone. If it is needed, then we go for that. Then, and one very important thing is imaging, that is ultrasound. अल्ट्रासाउंड से जिसकी हम बात करें कि ओवरी में सिस्ट हो जाते हैं क्योंकि एग्स रिलीज नहीं हो पा रहे हैं, उसमें ट्रैप हो जा रहे हैं ओवरी के अंदर, तो वो हमें बहुत क्लियरली अल्ट्रासाउंड पे दिख जाते हैं जी। बट सिर्फ अगर हमें ओवरी में एक सिस्ट दिख रही है तो इट्स नॉट एब्सोल्युटली इंडिकेटिव ऑफ पीसीओएस। जैसा हमने बात की थी, वो पीसीओडी तो हो सकता है बट मे बी वो पीसीओएस ना हो। देन हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट से। हम इसे जानते हैं कि अगर हम ग्लूकोज का 75 ग्राम देते हैं और फास्टिंग 1 आवर 2 आवर चेक करते हैं, अगर वो बढ़ा हुआ है तो वो शो करता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है। देन लिपिड प्रोफाइल हम कर सकते हैं, ड्यू टू पीसीओएस हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ने लगते हैं तो वो भी लिपिड प्रोफाइल से चेक हो सकते हैं। तो दीज आर द टेस्ट्स। राइट मैम। और किसी के अगर टेस्ट कंफर्म हो जाते हैं तो व्हाट आर द करंट बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर मैनेजिंग पीसीओएस? अगेन निवारण करने के लिए कारण पे ही ध्यान देना होगा, तो कॉजेस पे हम ध्यान देते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज इज लाइफस्टाइल थिंग। इफ इट इज unhealthy, we have to convert it into the healthier one. So one is weight management, second healthy diet, low carbs and high protein high fiber diet. Then some people are telling that dairy products aap hata sakte if you want. If you're not getting the pure dairy products, then better to avoid, because chemicals we should not eat, and nowadays pure dairy milna is so I think very difficult. Very difficult. So we can avoid, no problem. Then physical activity. जितना आप एक्सरसाइज करेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस घटेगा, एचपीओ एक्सेस बेहतर ढंग से काम करेगी। टाइमली हम सोएंगे, कोशिश करें। अब 7 बजे तो नहीं सो सकते डॉक्टर सौम्या, बट हाँ 9-10 बजे कोशिश करें। मान लीजिए हमारी जॉब है जो 12 बजे तक चलती है, अगर हमारी गर्ल्स को, हमारे बच्चों को, हमारी फीमेल्स को अवेयरनेस होगी कि इट्स हार्मिंग देयर बॉडी, इफ इट इज हार्मिंग, इफ हमें पीसीओएस के सिम्टम्स मिल रहे हैं, तो एटलीस्ट देन दे कैन थिंक ऑफ कि हमें कभी मौका मिले तो हम इस जॉब को स्विच ओवर कर सकें। मे बी मॉनिटरी लॉस, वो डजंट मैटर, हमारी बॉडी से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, तो हम शिफ्ट ओवर कर सकते हैं अगर हमें ये जानकारी होगी कि जल्दी सोना, सिर्फ इतनी छोटी सी बात, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, इट्स रियली इंपॉर्टेंट इन दिस इन पीसीओएस। एंड सेम वे आप स्क्रीन टाइम जितने से जॉब न छूटे। एक्चुअली अब तो हम बस स्क्रॉल करते जाते हो, टाइम का पता ही नहीं चलता। रील्स है, इतनी सारी चीजें, तो कुछ हेल्दी हैबिट्स जनरेट करें। पेपर वाली बुक्स पढ़ें, पेपर बैग के साथ बुक्स पढ़ें, हेल्दी ऑप्शंस हम कर सकते हैं। म्यूजिक सुने, उसमें डांस कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं। एंड देन स्ट्रेस के लिए जरूर कुछ करें। हमारी लाइफ में भर के स्ट्रेस है एक्चुअली, तो डीप ब्रीदिंग बहुत हेल्पफुल हो सकती है। मेडिटेटिव हम सब हो सकते हैं, 15-20 मिनट्स 24 आवर्स में अपने लिए निकाल सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच रियली मैटर्स। एंड देन कम्स द medications, what we help. So it depends on what the lady or girl needs. If she has hirsutism, hairs, then we give one hormonal pill which is anti-androgen. वो मेल हार्मोन पे काम करेगा, सिप्रोटेरॉन एसिटेट विद एस्ट्राडियोल के साथ कॉम्बो आता है, बहुत सारे लोग लेते हैं, तो वो दे सकते हैं डेफिनेटली। बट साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो करना ही है। देन आपको मान लीजिए हमें चाहते हैं, फर्टिलिटी चाहती है मेरी पेशेंट, देन फर्टिलिटी के लिए एग नहीं बन रहा है ना, तो इस समय हम सारा फोकस करेंगे कि हमें ओव्यूलेशन इंडक्शन करना है, हमें एग रिलीज करने में हेल्प करना है उनकी। और देन हम बहुत सारी चीज आईयूआई, आईवीएफ ऐड कर सकते हैं डेफिनेटली। अगेन लाइफस्टाइल विद द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर किसी लेडी के, किसी गर्ल के मेंसेस ही रेगुलर नहीं आ रहे हैं, उनको 3 महीने से ज्यादा हो रहा है, तो एटलीस्ट 3 मंथ्स में एक मेंसेस रिकमेंडेड है, मैंडेटरी है, नीडेड है, तो उसके लिए हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे सकते हैं, या कोई हार्मोनल पिल्स, आपने अक्सर सुना होगा 5 डेज के लिए विड्रॉल दिया जाता है, उसके बाद उन्हें मेंसेस आ जाते हैं। तो हम कोशिश जरूर करें कि लाइफस्टाइल से हमारे मेंसेस रेगुलर हो जाए। बट 3 महीने में अगर मेंसेस नहीं आ रहे तो इनिशियली इट मे बी नीडेड कि हमें हार्मोनल सपोर्ट दे के उनको ठीक करना पड़े, लेकिन हार्मोनल पिल्स जितना हम लेट में दें तो बेहतर है। जी
जी, राइट। और अगर कोई इस कंडीशन से घबरा जाए, इसको समझ ही ना पाए और डॉक्टर तक ना पहुंच पाए, तो क्या इससे रिलेटेड कुछ हेल्थ रिस्क्स डेवलप हो सकते हैं? मीन, आर देयर एनी लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क्स एसोसिएटेड विद पीसीओएस? और जैसे आपने बोला कि एक सिंड्रोम बहुत सारी ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकता है, तो क्या ये हार्ट कंडीशन या मेंटल हेल्थ इश्यूज कॉज कर सकता है? Definitely, Dr. Soumya. Actually, it's a syndrome. It's not the disease, na. So it's really, as you are telling us, कि बहुत सारे organs को affect ऑर्गन्स को कर रहा अफेक्ट है. करेगा। डायबिटीज मेलाइटिस तो इंडिया डायबिटिक कैपिटल बनता जा रहा है. WHO की रिपोर्ट थी ऐसी, और इट्स रियली ट्रू. We are जी, seeing a lot of patients with diabetes, especially with pregnancy. So it's a side effect or long-term risk of PCOD. इस- So diabetes mellitus is very common with PCOS. Then heart disease. Heart राइट, disease usually females में heart disease काफी कम पाई जाती थी, but nowadays you will see heart disease are increasing in राइट, females. Then फीमेल्स। bad cholesterol, हमारा बीपी हाई होना, ये सारी चीज पीसीओएस में हो रही है. और जैसा कि मैंने आपको कहा कि 3 महीने में एक मेंसेस हमें मैंडेटरी है, बिकॉज अगर जी, 3 महीने में वो शेड नहीं होगी ना एंडोमेट्रियम, तो वो एटिपिकल एंडोमेट्रियम में चेंज हो सकती है, प्रोलिफरेट कर सकती है. और लॉन्ग टर्म केसेस में देयर आर रेयर चांसेस, बट देयर आर चांसेस ऑफ endometrial cancer also. So राइट, yeah, so it's definitely needed to be corrected, needed to be acknowledged, and then एंड worked. देन वर्कड अपॉन। राइट, राइट। और मैम, जैसे आपने बोला कि जब भी हम पीसीओएस को डायग्नोज करते हैं, तो सबसे पहले अगर किसी फीमेल की सेक्सुअल लाइफ एक्टिव है, तो हम सबसे पहले प्रेगनेंसी रूल आउट करते हैं बिफोर कमिंग टू द कंक्लूजन। सो इन केस इफ somebody हैज conceived and has been diagnosed with PCOS, so क्या उस केस में miscarriage के chances रहते हैं? Is there an increased risk of miscarriage among women with PCOS? डेफिनेटली. डॉक्टर Okay. सौम्या, प्रेगनेंसी क्या है? बहुत सिंपल है. अगर हमारी बॉडी में हार्मोनल डिसबैलेंसिंग, बेसिकली हार्मोनल बैलेंस चल रहा है, तो जी, एक स्पर्म एक एग से फर्टिलाइज होके, आप देखो हमारे मुश्किल से 20-30 इयर्स बैक हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स में बेसिकली 12-13 बच्चे होते थे. नाउ इट इज देयर आर जी, मेनी सेंटर्स ऑफ इनफर्टिलिटी thing, IVF. We are seeing जी, patients struggling for their fertility. So जी, hormonal disturbance is a major cause of infertility. And then when the pregnancy happens, the girl conceives, but the hormonal disturbance is there in her body, then जी, pregnancy cannot go. It's yes, difficult to grow. So yes, hormonal disturbance की वजह से miscarriages are there in PCOS patients. So your right, gynec will help in this. So definitely you have to meet your gynec. okay. राइट मैम। और अब थोड़ा सा आते हैं प्रिवेंशन पे। जैसे आपने बोला कि इलाज के साथ साथ लाइफस्टाइल को मैनेज करना बहुत जरूरी है, तो इस केस में क्या हमारी जो हेल्थ लिटरेसी है कोई रोल प्ले कर सकती है? व्हाट रोल डज द हेल्थ लिटरेसी प्ले इन द प्रिवेंशन ऑफ मैनेजमेंट and of course I mean prevention and management of PCOS, and how can better awareness and education empower women to make healthier choices? Definitely, Dr. Soumya. As we tell now that mind, I see which mind जी, knows. So health yes, literacy help in knowing the thing to yes, people, that there is something. If the menses is delayed, it's not normal. You right, have to. If you have facial hairs, if the girl don't know that PCOS or PCOD is something, that she can be maybe mentally disturbed, what is going through her. on. So if she knows that these are the things, she can visit to her health provider, Yes, her gynec. So, yes, and she can share things honestly, and definitely she will get help and the on things time. resolved. Yes. Yes, so on time help is the key, right? Okay. So I'm just going to summarize this wonderful session, ma'am. That what advice would a healthcare professional like yourself give to women who are suspecting they may have PCOS,
but they are unsure about seeking medical attention. So first of all, awareness is important, and this awareness will help her to reach the gynec or healthcare provider, and she need to be honest and share each and every detail of her symptoms and sign, so that the healthcare provider can help. And then most important thing is compliance, because it's not nothing like that. The PCOS is not the UTI, urinary tract infection. गायनेक ने कहा कि बेटा पानी ज्यादा पीना, ये प्रोबायोटिक्स या एंटीबायोटिक्स ले लो, ये सिरप ले लो और वो ठीक हो जाएगी. नो, इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग. जस्ट लाइक डायबिटीज, अगर डायबिटीज की हम मेडिसिन लेते हैं और मान लीजिए गुलाब जामुन पे गुलाब जामुन खाते हैं तो ठीक नहीं होगा. Same way, PCOS needs a very disciplined lifestyle. So it's a challenge first, but we can take the challenge. So and we can act upon. So just हमें compliance पे काम करना है, because medicines जादू नहीं करेंगी. It's just like a teamwork. आपके गायनेक कुछ बताएंगे, आपको काम करना होगा, मेडिसिन कुछ तरह से हेल्प करेंगी, तो दोनों जब मिल जाएंगे, आप लाइफस्टाइल सुधारोगे, गायनेक मेडिसिन देंगे, तो डेफिनेटली पीसीओएस को हम लोग हरा देंगे डेफिनेटली. बहुत ही बढ़िया. सो आई थिंक पहले हमें नॉलेज होना चाहिए अबाउट पीसीओएस, फिर हम अपने गायनी के पास में एक ऑनेस्ट ओपन कम्युनिकेशन रखें, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो आपने कहा, अपनी गायनेक की सारी इंस्ट्रक्शंस को हमने अडियर करना है, कंप्लाई करना है एंड फॉलो करना है. How beautifully put. So, on that wonderful note, ma'am, we really appreciate your presence with us today. And I'm hoping that the enlightening information shared will be valuable to many families out there. So, thank you so much for joining us. It's really been a pleasure. Thank you, Dr. Soumya. Thank you. Thank you, our viewers also. Thank you so much, ma'am. Thank you. And for more such informative videos, please do subscribe to our channel and press the bell icon for regular updates. And Dr. Ekta की सारी precautions को और सारी advice को please strictly follow कीजिएगा. Thank you so much once again.